Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you're following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. How to make CV or resume for law internships. Today we are going to learn how to create a resume because CV is a bit detailed thingy, but we're going to learn how to create a resume. मुझे पता है बहुत सारे law students internship इसीलिए ही नहीं apply करते because you have to make a CV and you think that making a CV is very difficult, so you think that it is better to sleep during the vacations instead of sit down and create a CV and apply for an internship. So today we are going to create a CV together. I'll leave a document in the description box below which you can edit and create your CV. Now, one thing that I want to clear out here is that not everyone can have same CV. Not everyone can have same CV, right? Some students might have scored really well. Some are really great in the extracurricular activities, right? So different things for different students, right? बट हर किसी का सीवी बन सकता है और अच्छे से बन सकता है और हर किसी का सीवी डिफरेंट होगा. तो I'm going to discuss everything in this video, right? So watch this video till the end. चलिए. Step 1, make a list of all the great things that you've done in your life, right? All the things you've participated in a quiz, in a competition, a topper, or you have scored 90 plus or something, any of your achievements. You were really great when it comes to extracurricular activities, you were into music, dancing, you were in sports, anything. Make a note of it, right? Open up your certificates वाला जो folder होता है and have a look कि क्या अच्छा किया है, you know some language, anything, right? Now, obviously, if you are in your first semester or second semester and it's just that you've just entered college and वहाँ पे कुछ ज़्यादा आपका नहीं आपने किया है, then you have to add your achievements at school. School में क्या किया, कैसा था. अगर आपके पास 3 to 4 चीज़ें या even 2 to 3 things आपको मिल जाती हैं, well and good, like you were captain or prefect or anything, that you can add that also, any position that you've held, right? Now this is for first or second semester वाले students जिनका college में ज़्यादा time जिनको नहीं हुआ है, right? Now if you are in third semester, fourth semester, then I assume you would have done something in your first year or your second year if you're in your third year. So obviously you should include your college achievements, right? You participated in a moot or you wrote a research paper, you did your internships, anything of that sort, you should note them down. So now अब मुझे पता है सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछने वाले हैं वो ये पूछने वाले, दी हमने कुछ नहीं किया, हमने तो क्लासेस भी नहीं अटेंड करी, हम तो सिर्फ एग्जाम देते थे, पास होते थे और दूसरे क्लास में चले जाते थे स्कूल में और अब दूसरे सेमेस्टर में चले जाते हैं या दूसरे ईयर में चले जाते हैं, राइट? नाउ ऐसे लोगों के लिए आई एम गोइंग टू से दैट आई हैव डन सो मेनी वीडियोज वेर इन आई एम टेलिंग यू दैट यू शुड गो एंड डू internships, you should be a part of extracurricular activities. So even now in your college you can create a CV. कैसे कि फर्स्ट इंटर्नशिप, देखो हर किसी की फर्स्ट इंटर्नशिप कभी ना कभी वो जाते हैं, तो फर्स्ट इंटर्नशिप अगर कुछ भी नहीं किया है तो एनजीओज इज द बेस्ट प्लेस रहता है क्योंकि एनजीओज को हमेशा लोगों की ज़रूरत रहती है. तो एनजीओ अपने सिटी में जो भी एनजीओ है, चाहे तो वीकेंड्स पे जाके बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है, या फिर कोई एनजीओ है उसके साथ कोई ना कोई काम करें, तो ऐसे करके आप अपने सर्टिफिकेट्स लेकर आ सकते हैं एंड वो सीवी में डाल सकते हैं, रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो क्रिएट अ सीवी, ठीक है ना? पर्पसफुली ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो कि यू आर एबल टू क्रिएट अ सीवी. समझ में आ गया? अगर नहीं भी है कुछ तो फर्स्ट टाइम है, सिर्फ एजुकेशन ऐड करो, कर दो, एटलीस्ट अप्लाई तो करो, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू डू बेस्ट. अब आप क्या चीज़ बेस्ट करते हो? अब आप कहोगे मैं तो कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं करती, कुछ तो होगा. लोग आपको बोलते होंगे अरे यार यू डू दिस बेस्ट, कुछ तो चीज़ होगी, कोई स्किल जो आपके अंदर है, कोई आप कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे हो, या फिर आप राइटिंग में बहुत अच्छे हो, या फिर आप फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी खींचते हो, ठीक है ना, फोटोग्राफी का आपको बहुत शौक है, या फिर कुछ भी, एनीथिंग, मे बी यू लव टू रिसर्च, ठीक है ना, आप रिसर्च में बहुत अच्छे हो, या राइटिंग में लीगल लैंग्वेज में बोले तो ड्राफ्टिंग में बहुत अच्छे हो, या कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं आपकी. तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको लिखनी पड़ेंगी. आई नो हम अपने आप को अंडर वैल्यू करते हैं, हमें लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं, बट
थोड़ा सा अपने ऊपर वो करो, एंड ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, बट सोचो कि क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से करने आती हैं। आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट अच्छे से हैंडल करते हो, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हो कि मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा ये देखो, मेरा अकाउंट बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ भी, एनीथिंग दैट यू आर डूइंग, राइट। नेक्स्ट इज क्रिएट अ मास्टर सीवी। नाउ दिस इज अ टिप। तो क्या होता है, जब हम कॉलेज में होते हैं, हम कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते रहते हैं, कोई ना कोई वेबिनार अटेंड करते हैं, कोई ना कोई कंपटीशन अटेंड करते हैं, बहुत कुछ होता है, कॉलेज का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, हम कितना कुछ करते हैं, राइट। हम किसी एग्जाम में टॉप कर गए, सिर्फ एग्जाम में, या किसी सेमेस्टर में टॉप कर गए, या कुछ भी, हमें कोई सर्टिफिकेट मिलता है कॉलेज की तरफ से, हमने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो अपने ये मास्टर सीवी में ऐड करते रहो, सो दैट आप भूलो नहीं। तो एक तो चीज़, जब भी आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो आप ऐड कर सकते हो जो भी नई चीज़ें आपने करी है, नंबर वन। नंबर टू, जब आप इंटरव्यू के लिए बैठने वाले हो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अब इंटरव्यूज भी लेती हैं इंटर्न्स के, तो आप, अगर आपको पता होगा कि आपने क्या क्या किया हुआ है, तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो इंटरव्यू के अंदर। तो क्रिएट अ मास्टर सीवी, कीप दीज थिंग्स इन माइंड। देखिए, वी नीड टू स्टैंड आउट। हम सीवी क्यों बना रहे हैं? हम सीवी इसलिए बना रहे हैं बिकॉज हम पिच कर रहे हैं, हम उनको कन्विंस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? उनको कन्विंस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कन्विंस कर रहे हैं कि वी आर द बेस्ट, या हम वो कैंडिडेट हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेकर जा सकते हैं, राइट। अब वो हमने प्रूव कैसे करना है? हम अपने सीवी में वो दिखाएंगे, ठीक है ना। नाउ वन ऑफ द बेस्ट टिप्स दैट आई कैन गिव यू इज दिस। जब भी, मैंने कह दिया ना, जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि आपको पता है, आप या तो आप एनजीओज में अप्लाई कर रहे हो, या लॉ फर्म्स में अप्लाई कर रहे हो, या लिटिगेशन में जाना चाहते हो तो एडवोकेट्स के साथ अप्लाई कर रहे हो, डिफरेंट, ठीक है, या फिर आप किसी और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, किसी और टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो, राइट। तो आपने क्या करना है? आपने गूगल करना है, ठीक है ना। बेस्ट होगा अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन की कोई जॉब एडवर्टीजमेंट है, वो इनवाइट कर रहे हैं एप्लीकेशंस के, अगर किसी को जॉब चाहिए तो ये है हमें। अब देखिए उसमें स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है उनको, रिक्वायर्ड स्किल्स क्या हैं। अगर उनमें से कोई ऐसी स्किल है जो आपके पास है, वो कीवर्ड कॉपी कर लीजिए, वो कीवर्ड्स कॉपी कर लीजिए, एंड ट्राई टू इंक्लूड देम इन योर सीवी, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ रहती है। इससे क्या होगा कि आई कैचिंग सीवी बनेगा। याद रखना कि दिन में एक एचआर एटलीस्ट 10 to 15, 20 to 100 के बीच में वो सीवी देख लेते हैं। तो इफ़ यू वांट योर सीवी टू स्टैंड आउट, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, राइट। एंड जो चीज़ें और ध्यान में रखनी है, देयर शुड बी नो पैराग्राफ्स। आप लेटर नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, पॉइंट्स में लिखोगे आप, पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप लिखोगे अपना सीवी, राइट। आपने पास्ट टेंस यूज करना है थ्रू आउट योर सीवी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंसेस विद एक्शन वर्ब्स, ओके। नेक्स्ट इज यूज अकम्पलिशमेंट स्टेटमेंट्स एंड क्वांटिफाई योर रिजल्ट। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कंपनी के लिए, किसी वेबसाइट के लिए आपने ब्लॉग्स लिखे, ठीक है ना, और उनका जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज हो गया, तो ये आप मेंशन करोगे, ठीक है ना। ट्रैफिक इंक्रीज होगा, अगर ये पता है कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ। आपने कोई ऑफिस ज्वाइन किया, ठीक है ना, ऑफिस ज्वाइन करके आपको क्लाइंट हैंडल करने के लिए दिए गए, तो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है जो वो इंक्रीज हो गई, तो आप वो मेंशन करोगे, राइट। नेक्स्ट इज नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। नाउ दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे बच्चे लॉ गिरी के साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं और वो सीवी भेजते हैं अपना, बट उसके अंदर सबसे पहले तो वो सीवी नहीं भेजते, वो ईमेल करते हैं। ईमेल मतलब ईमेल में 2 लाइन्स लिख के भेज देंगे कि वी वांट टू इंटर्न विद यू। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मतलब व्हाट आर यू डूइंग व्हाट नॉट? अगर लिख भी देंगे तो बस 2 to 3 लाइन्स ईमेल, और साथ में कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होगा, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। उसके बाद अगर कोई सीवी लिख भी देगा या रिज्यूमे भेज भी देंगे, तो उनमें उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। सो क्रॉस, तो आपने क्या करना है? आपने ग्रामरली से अपना सीवी चेक करना है, नॉट मोर देन 1 to 2 पेज। एक नेम एंड एड्रेस, एड्रेस मतलब ईमेल एड्रेस, तो नेम एंड ईमेल एड्रेस, नेम आप बोल्ड में लिखेंगे, ठीक है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और कोर्स जो आप कर रहे हैं। उसके बाद ईमेल आईडी, देखिए ईमेल आईडी आपकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है ना। coolsoandso@gmail.com नहीं चलेगा, यू नीड अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी, ठीक है ना। यू नीड अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी, आपका नाम अंडरस्कोर कर दो या कुछ कर दो, बट कूल, ठीक है ना, फंकी ऐसा नहीं चलेगा। तो यू नीड अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी। इफ यू डोंट हैव वन, क्रिएट वन।
फ़ोन नंबर जो वर्क कर रहा है, बिकॉज दे कैन कॉन्टैक्ट यू, दे कैन कॉल यू, तो फ़ोन नंबर जो वर्क कर रहा है वो भी आप लिखोगे। ओके, नेक्स्ट इज लिंक्डइन। अगर लिंक्डइन का जो आपका प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा वेल केप्ट है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। फाइन, नॉट नेसेसरी। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो ये नहीं कहना कि क्योंकि मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो मैं लॉ इंटर्नशिप नहीं अप्लाई कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बिना भी चल जाएगा, ये सब कुछ तो होता ही है ना, सबके पास नाम भी होता है, ईमेल आईडी भी होता है और फ़ोन नंबर भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नैन जैन, BA LLB, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। राइट, ऐसे ऐसा आप कुछ कर सकते हैं। फाइन, डोंट्स क्या है? देखिए, फुल एड्रेस अपना देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और फोटोग्राफ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी स्किल्स देखना चाहते हैं, आप कैसे दिखते हैं उस चीज़ में वो नहीं इंटरेस्टेड है। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं, दैट इज व्हाट यू होप टू अचीव एज एन इंटर्न और हाउ यू कैन हेल्प। एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको ये शो करना है सीवी के अंदर कि हाउ यू कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, या आप कैसे उनका बर्डन कम कर सकते हो। ठीक है ना, अब जब कोई इंटर्न आता है तो सबसे वैल्यूएबल चीज़ इंटर्न लेता है ऑर्गेनाइजेशन की, वो है टाइम। क्या लेता है? टाइम, क्योंकि आप क्वेश्चंस पूछते हो, आप वर्क लेते हो, सबमिट करते हो। तो अगर आप वो टाइम जो आप ले रहे हो, एसोसिएट्स का, लॉयर्स का टाइम जो आप ले रहे हो, क्या आप उसको उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो? ठीक है ना, जिस एसोसिएट के अंडर आपको प्लेस किया गया, क्या आप उनकी हेल्प कर रहे हो या फिर सिर्फ उनका टाइम वेस्ट करवा रहे हो? और वो कैसे होगा, कैसे आप शो करोगे? अब बता कर कि मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है, मेरा एम क्या है। ठीक है ना, अब बहुत बच्चे होते हैं वो झूठ बोल देते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे सीवीज, क्या कहेंगे, वी नो हाउ टू ड्राफ्ट, वी नो हाउ टू रिसर्च, वी नो हाउ टू यूज सो एंड सो सॉफ्टवेयर, बिकॉज उन्होंने कॉपी किया होता है किसी का सीवी। भी झूठ नहीं लिखना है, ठीक है ना, जो आता है वो ही बताना है, बट वो इतने अच्छे से बताना है कि उनको लगे कि हाँ ये बच्चा हेल्प कर सकता है। अगर नहीं भी आता देन यू कैन ऑल्सो राइट दैट आई वॉन्ट टू लर्न, आई नो दिस एंड आई वॉन्ट टू लर्न दिस एंड आई नो दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट फॉर लर्निंग सो एंड सो। ठीक है, थोड़ी तारीफ भी कर दो। So it could be a legal research internship with Lawgiri. Fine. Next is to utilize my education and experience to research and draft petitions for speedy and effective justice. Taking a challenging role in a dynamic law field which will offer early responsibilities, a progressive career path. You can completely skip learning objective part or you can क्रिएट योर ओन। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में ये मत कहना ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। और वैसे भी डिस्क्लेमर, देखो हर किसी का सीवी अलग अलग बनता है, बिकॉज आपकी जर्नी जो होती है लाइफ की वो कम्प्लीटली अलग रहती है। ठीक है ना, किसी ने कुछ किया होता है, किसी ने कुछ किया होता है, तो किसी का भी एक मैं आपको पैटर्न नहीं दे सकती कि ये ऐसा सीवी बना लो, नहीं। बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप डाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। राइट, और ये वाली बात भी है, झूठ मत बोलो बट अपना जो बेस्ट है वो दिखाओ कि हाँ ये मेरा बेस्ट है। ठीक है ना, और जो थोड़ा वीक पार्ट है वो आप छुपा भी सकते हो या थोड़ा सा नहीं भी स्किप कर सकते हो। राइट, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट हम जो हेडिंग देंगे, और जो आपका सीवी होगा वो हेडिंग में होगा। हेडिंग मतलब नाम आया, ठीक है ना, उसके बाद आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव आया, तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी एजुकेशन है। तो एजुकेशन आप टैबुलर फॉर्म के अंदर अपना एजुकेशन बता सकते हैं, ऐसे जैसे डिग्री लिख सकते हैं। अगर आप BA LLB कर रहे हैं तो यहाँ पे BA LLB आ जाएगा, ठीक है, टाइप कर लेंगे आप। अगर आप BA LLB अभी पढ़ रहे हैं तो आप लिख सकते हैं परसेंट सो एंड सो सेमेस्टर, इंस्टीट्यूट कौन सा है आपका, परसेंटेज कितनी है आपकी, ये सब कुछ आप मेंशन कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे, मैं देख रही हूँ आजकल वो एक ट्रेंड चला है, चेंज आया है जो कि मुझे बहुत पसंद है, कि वो क्या करते हैं, वो अपने सब्जेक्ट्स मेंशन करते हैं कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, आई नो फर्स्ट ईयर में बहुत कम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हम, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो लिख देते हैं कि हमने IPC पढ़ लिया है, हमने CRPC पढ़ लिया, हमने CPC पढ़ लिया। तो मतलब उससे क्या होता है, एक लॉ फॉर्म को पता चल जाता है कि अच्छा इनको इस सब्जेक्ट की नॉलेज है तो इट इज़ गुड। ठीक है ना, तो मे बी दे कैन हेल्प विद दिस, दे कैन हेल्प विद दैट। राइट, पता है जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे हमारे तो सब्जेक्ट्स ही टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स है, कोई बात नहीं, स्किप कर दो। बट सेकंड ईयर के अंदर जब जाओगे,
या थर्ड ईयर के अंदर जब जाओगे तो अपने सब्जेक्ट्स मेंशन करने स्टार्ट कर देना, उससे एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। उसके लिए भी आप ऐसा सा एक बॉक्स बना सकते हो और उसके अंदर अपने सारे सब्जेक्ट्स मेंशन कर दो और ऊपर यहाँ पे लिख दो सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, हेडिंग दे दो, ठीक है। और एजुकेशन के अंदर और एजुकेशन पार्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना कोर्स और अपनी परसेंटेज ये तो दोगे ही दोगे, बट अपना जो 12th का है 10th का है वो आप स्किप कर सकते हो फिर, ठीक है ना। बट अगर फर्स्ट सेम में हो सेकंड सेम में हो तो 12th 10th की परसेंटेज लिख दो, सब कुछ लिख दो। और बी अपनी जो बी एल एल बी कर रहे हो या इवन एल एल बी कर रहे हो 3 ईयर की, तो बाई चांस आप एल एल बी 3 ईयर कर रहे हो तो अब फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन के अंदर जो किया है वो भी आप लिख सकते हो। मान लो आपने बी कॉम करी है तो आप लिख सकते हो बी कॉम इंस्टीट्यूट क्या परसेंटेज रही है आपके ओवरऑल, वो लिख सकते हो, राइट। एक और बात, अगर आप हर सेमेस्टर की अलग से परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तक आपका ओवरऑल क्या चल रहा है वो आप लिख सकते हो, ओके। करियर रिलेटेड एक्सपीरियंस और वर्क एक्सपीरियंस, देखिए यहाँ पे काम आता है इंटर्नशिप्स वाला पार्ट, ठीक है ना। इंटर्नशिप्स वाला पार्ट यहाँ पे काम आता है कि कितना एक्सपीरियंस है ना। अगर आप अगेन फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर के हो, आपने अभी तक कोई इंटर्नशिप नहीं करी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अगेन स्कूल में क्या किया, स्कूल में कोई क्विज में पार्टिसिपेट किया, कुछ भी किया वो आप बता सकते हो। ऑब्वियसली जो जिनके पास आप अप्लाई करो उनको भी पता रहता है कि ठीक है अभी बच्चा फर्स्ट सेम में है। फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट जब अप्लाई करता है और वो इतने अच्छे से सीवी लिखकर भेजता है कि वो अपने स्कूल में डाइव करता है कि मैंने क्या क्या किया है, तो वैसे ही इतना अच्छा लगता है ना, वैसे ही इंटर्नशिप बंदा दे देता है कि लो यार कर लो, ठीक है। टॉक अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स करा हुआ है, वर्कड विद एन ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट टाइम फुल टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी काम किया हुआ है उसको आप बता सकते हो। आपने वॉलंटियर किया हुआ है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मैं अज्यूम कर रही हूँ अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में हो तो आपने कुछ ना कुछ कोई ना कोई इंटर्नशिप करी हुई है। अगर नहीं करी हुई अभी भी लेट नहीं हुआ है, यू कैन स्टार्ट, इट इज नेवर टू लेट। आई हैव डन सो मेनी वीडियोस वेर इन आई हैव टॉक्ड अबाउट इंटर्नशिप्स, कैसे आप फर्स्ट इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हो, क्या है क्या नहीं। आई लीव द लिंक of all the videos in the description box below. Volunteer experience, have worked with an NGO or any other organization, ठीक है। आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में किया, एमयूएन्स में किया, डिबेट में, क्विज में, कुछ भी, ठीक है ना। देखिए जब आप कॉलेज में आ जाते हैं और सेकेंड ईयर में है तो आप ट्राई करिए कि कॉलेज की जो अचीवमेंट्स हैं वो आप दिखा सके। बट अगर आपके अभी तक कॉलेज में ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं है तो स्कूल वाली भी आप डाल सकते हैं, राइट। रिसर्च पेपर लिखा है, कंटेंट राइटिंग करिए, आर्टिकल्स लिखे हैं कहीं पर, उनका लिंक भी दे सकते हैं, ठीक है। लिस्ट योर एक्सपीरियंस इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो अभी रिसेंट अचीवमेंट्स हैं वो पहले आएंगी, बाकी बाकी पीछे, ठीक है ना। 2021 में जो किया 2020 ऐसे लिखना है। Write your position title, name and location of the organization, डेट्स ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट, और फिर उसके बाद बुलेट पॉइंट्स में आप बता सकते हो कि वहाँ पे आपने क्या किया। अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये लॉगिरी वेबसाइट के साथ काम किया, डेट टू डेट मतलब आप डेट्स लिखोगे, ठीक है ना, कब से कब तक आपने काम किया। कंटेंट राइटर आपकी ये पोस्ट होगी, आपने क्या किया, रोट 100+ ब्लॉग पोस्ट, इंक्रीज ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट बाय नियरली 40%, क्वांटिफाई कर दिया मैंने कि मैंने ये किया, अचीव क्या किया, वहां पे उनके लिए काम किया तो उनके क्या इनपुट दी, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में कैसे हेल्प किया। अनदर एग्जाम्पल, एडवोकेट अमन शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली, डेट टू डेट मतलब आपने डेट्स लिखनी है जब आप इंटर्नशिप कर रहे थे। लीगल रिसर्च असिस्टेंट, परफॉर्म लीगल रिसर्च एंड डाटा एंट्री टास्क, ड्राफ्टेड पिटिशंस एंड असिस्टेड इन रिसर्च वर्क, पार्टिसिपेट इन। अब और क्या ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है, मान लो आपने इंटर्नशिप्स नहीं करी हुई, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन, राइट। तो आप क्या, अगर आपने मूड्स में पार्टिसिपेट किया वो लिख सकते हो, ठीक है। आपने कोई इंटर क्लास मूड हुआ वो आपने जीता वो लिख सकते हो, ठीक है ना। कोई कुछ भी आपकी कोई अचीवमेंट है वो आप मेंशन कर सकते हो। आपका पब्लिश हुआ कोई आर्टिकल, कोई रिसर्च पेपर, वो लिख सकते हो। ऑर्गेनाइज किया आपने सब कुछ, लॉ, ये सब कुछ, एनीथिंग, ठीक है ना, तो आप वो बता सकते हो। स्ट्रेंथ्स एंड स्किल्स, देखिए आप इसमें से कुछ भी उठा सकते हो, ये आइडिया देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए आपको, बट आपके अंदर ये होना चाहिए। फैमिलैरिटी विद कोर्ट प्रोसीजर्स, आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट के साथ इंटर्न किया है तो आपको पता है कि क्या प्रोसीडिंग्स रहते हैं, क्या होता है, तो वो लिख सकते हो। रिसर्च में आप अच्छे हो,
स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक है आपके अंदर, नेगोशिएशन, डिटेल ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, सर्विस लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टाइम मैनेजमेंट। अब अगर आप किसी लॉ के अंदर बहुत अच्छे हो, मे बी आपने मूट कोर्ट किया था, फिर उसी लॉ के ऊपर आपने रिसर्च पेपर भी लिख दिया, फिर उसके ऊपर इंटर्नशिप भी कर ली उसी लॉ से रिलेटेड में किसी एडवोकेट के साथ या लॉ फर्म के साथ, तो आपको पता है उस लॉ के बारे में बहुत कुछ, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। अब हॉबीज एंड इंटरेस्ट कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हो, अगर आपकी कोई हॉबी है तो वो आप लिख भी सकते हो, जैसे ब्लॉग राइटिंग, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, रीडिंग, रनिंग मैराथॉन्स, ऑर्गेनाइजिंग, चैरिटी इवेंट्स। प्लीज झूठ मत बोलना, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक इंटर्न ने यहाँ पे लिखा था कि आई लव रीडिंग बुक्स, ठीक है ना, तो मैंने पूछ लिया, एक बुक का नाम पूछा, दूसरे का, तो उन्होंने दो तीन बुक्स ऐसी बता दी जो बाय चांस मैंने पढ़ी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि अच्छा ठीक है, आपको करेक्टर कौन सा फेवरेट है आपका या कुछ भी। तो यू नो, इन द एंड द पर्सन एक्सेप्टेड दैट आई डोंट रीड बुक्स, आई एम लाइंग। बोनस टिप्स की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। नंबर वन बोनस टिप इज़ बी ऑनेस्ट गाइज। मतलब अगर सच में ही कुछ नहीं किया है और जब तुम लिख रहे हो सीवी, तो तुम्हें बस ऐसे ही लिख रहे हो, एजुकेशन लिख दिया और सब कुछ जो मतलब परफॉर्मा में है वो ही ऐड कर रहे हो, अपना खुद से कुछ ज़्यादा नहीं ऐड कर पा रहे हो, तो इट इज़ हाई टाइम तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे सामने कि यार कल को जब जॉब अप्लाई करने जाओगे तो क्या ही दिखाओगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि सीवी कैसे बनाना है, ये करो वो करो, इंटर्नशिप्स करो, रिसर्च पेपर लिखो, पार्टिसिपेट करो डिबेट्स में, मूड कोर्ट्स में। बार बार बोल रही हूँ ना, क्यों बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। कल को आप कह रहे हो, बहुत बच्चे बोलते हैं मुझे कि दी हमारे सीनियर्स तो कह रहे हैं इंजॉय करो, ये टाइम वापस नहीं आएगा। हाँ, ये टाइम वापस नहीं आएगा, तो इसलिए इंजॉय करना भी ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव फन, इंजॉय करना ज़रूरी है, बट प्लस ये जो सीवी है ना, अगर ये ऐसा ही रह गया तो जॉब लगनी, लॉयर ढूंढने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, राइट। तो इसलिए ये आपका आईना है, इट इज़ अ मिरर विच इज़ शोइंग दैट यू शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग। एंड कभी भी लेट नहीं होता है। इवन अगर आप 4th ईयर में हो ना और 5 ईयर की आपकी लॉ है, आप 3rd ईयर में हो ना और 3 ईयर की आपकी लॉ है, आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। रिव्यू, देखो यार, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इस चीज़ पे बहुत जज किया जाता है। तो पढ़ो, बार बार पढ़ो, ऐसा नहीं कि बन गया तो फटाफट से भेज दो, ठीक है ना। मैं तो कहूँगी एक दिन के लिए रख लो, अगले दिन दोबारा देखो एंड देन सेंड करो। ईजी टू रीड, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, ऐसा देख कर नहीं लगना चाहिए कि यार क्या ही भेज दिया ये, ठीक है। इजी टू रीड होना चाहिए। कन्वर्ट द सीवी इनटू पीडीएफ फॉर्मेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजना है रिज्यूमे का, ठीक है। नेम द डॉक्यूमेंट, अब क्या नाम दोगे उसको, अपना रिज्यूमे नहीं, अपना नाम लिखोगे, जैसे मैंने दिया था नाम दोगे, जैसे नयन जैन, अगर जैसे एनएलयू दिल्ली, कुछ भी ऐसा सा रिज्यूमे में लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ करना है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं, बट डिफरेंस होता है इससे। सिंपल फॉन्ट्स रखने हैं, सिंपल कलर थीम रखनी है। मैं तो कहूँगी कलर थीम ब्लैक एंड वाइट ही रखो, सही रहता है, कोई ज़्यादा कलरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। Get your resume reviewed. Now, a lot of you every day request me that we want to talk to you one on one. हमारी जो problems हैं वो बहुत ही different हैं। We know आप बहुत content डाल रहे हो। देखो, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा पर्पस अभी भी तब भी यही था कि मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, राइट। सारे लोग दे वांट टू टॉक टू मी वन ऑन वन। देखो यार, सबसे बात करनी बहुत ही डिफिकल्ट है, और बहुत लोगों की जो क्वेरीज होती हैं वो बहुत छोटी सी होती हैं, तो वो मैं कमेंट्स में सॉल्व कर देती हूँ, इंस्टाग्राम पे बात करके सॉल्व कर देती हूँ। बट कईयों की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए दे वांट टू टॉक टू मी वन ऑन वन, फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, कॉल के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपका सीवी रिव्यू करूँ या आपकी प्लानिंग में हेल्प करूँ, या यू आर इन अ प्रॉब्लम इन लाइफ वेयर इन यू वांट टू टॉक टू मी, और आपको लगता है कि मैं सब कुछ सही कर दूंगी, जो कि मैं कर दूंगी काउंसलिंग कर कर आपकी, तो आप इस प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हैं। हम फीस लेंगे, आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए, इट इज़ अ पेड प्रोग्राम। तो इसका जो सारे डिटेल्स होंगी वो आपको इंस्टाग्राम पे और ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं info.loggery@gmail.com पर, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक पूरा पेज प्रिपेयर कर कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, जिसके थ्रू आप आपको पता चल जाए कि कैसे क्या प्रोग्राम है, क्या फ़ीस है और सब कुछ। तो या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो यूट्यूब पे डाल रही हूँ वीडियोस वो कम कर दूंगी या कुछ हो जाएगा, नहीं।
मेरा पर्पस, मेरा एम है कि मैं आप सब लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, और वो हमेशा मैं करती रहूँगी जब तक मेरे अंदर जान है. सो या, दैट्स इट. आई होप दिस video helps you out, and if you have any queries you can leave it in the comment section below. If you want me to do more of such kind of videos wherein I help you with your CV, resume and stuff like that, you can request those videos in the comment section. I would love to do the videos. That's it. And also there's a performer, though वो rough है बहुत ज़्यादा, because again you cannot create one kind of CV for everyone, और मैं नहीं create करना चाहती थी वो CV जिसके अंदर मैं बहुत कुछ डाल दूँ और बच्चे डर जाएं, बिकॉज बच्चे डर जाते हैं, वो पहले बोलते दीदी हमने कुछ नहीं किया. तो डरने वाली कोई बात नहीं है, जिसने जो भी किया है वो लिखो और अप्लाई करो, ठीक है ना. और एक और टिप मैं जो देना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइज, एक दो ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर और वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये मत सोचो कि नहीं मुझे तो कोई इंटर्नशिप नहीं देगा, ये वो नहीं. आप जो भी कॉलेज में हो, कहीं पर भी हो, आपको इंटर्नशिप मिलेगा. ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अप्लाई करो, करते रहो जब तक रिप्लाई नहीं मिलता. बस मतलब पीछे पड़ जाओ, दृढ़ता, दैट इज़ वॉट यू नीड. ओके, कीजिएगा. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ. वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ. तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके. वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय.